Hello and welcome everyone to my YouTube channel, Imavate Academy. My name is Sunando Devnath. This video is specifically for the present students of class 10th, those who are preparing for their semester 2 ICSE board examinations. Now, I have already put up all the lectures for the unit arrays. They are arranged in a separate playlist in my playlist section. You can go to my playlist section. You can check the lectures over there. Also, the link to that playlist has been put up in the description box of this video. Now, today I'm going to start a new unit, which is string handling in Java, also known as string manipulation in Java, which is a very important unit. So without wasting any more time, let us dive into this particular chapter or unit. String manipulation. So we know what is the meaning of string. Okay, string is basically a collection of characters. When I write any word, say apple, so this is a string. Of course, a string must be enclosed in double quotes, so this becomes a string. It can be a single character also, or it can be a group of characters. Even a sentence is also a group of characters, so that can also be a string. But definitely a string is always enclosed in double quotes. Now, how do we initialize a string? Okay, it's very similar to the way we initialize any integer variable. Let us say I have to initialize an integer variable and the name of the variable is n, and I'm giving the value 6. So we write in this way, int n is equal to 6 semicolon. In the same way, if I have to initialize a variable where I will store a string and say the name of the variable is s, so the data type is string, so मैं लिखूंगा string. Be careful, string ka s is capital. String लिख दिया, this is the data type. Then I'll write the name of the variable, say s is equal to now the string, the value that I'll store in this s. Say the word is apple, so I'll write apple and in double quotes semicolon. So the apple has got stored in this s. Okay, now each and every character of the string has an index number. That is very, very important. This a has an index number, this p has an index number, this another p has an index number, l has an index number, and e has an index number. It is very similar to the index number that we studied in the chapter arrays. याद करो arrays में भी हर एक elements का हर एक element का एक index number था ना, and the index number का counting started from 0. Very similar to that, यहाँ पे भी हमारा जो index number की counting होगी वो 0 से start होगी. So A has the index number of 0, P has 1, the another P has 2, this is 3, and is E का index number is 4. इसे पोजीशन भी बोल सकते हैं, इंडेक्स भी बोल सकते हैं. ठीक है. Now there is a term known as length of the string. Length का मतलब होता है number of characters in the string. So total number of characters are 5. A P P L E 1 2 3 4 5. Number of characters जब हम बोल रहे हैं तो counting 1 से start होगी, right? So length की counting हमेशा 1 से start होती है, लेकिन index की counting हमेशा 0 से start होती है. Position की counting 0 से start होती है. So this is one thing. Now we will straight away dive into the chapter, and where we have to study, specifically the different string functions. I'll take you to the syllabus, which is prescribed by the council. I'll show you what we are actually going to study. So you can see the reduced portion of your semester 2 examinations. I'll straight away take you to this unit, string handling, also known as string manipulation. Here we have to study about string class, methods of string class, and implementation of string class methods and string array. So basically, what are these methods of the string class? Which are those methods that we have to study? These: trim, to lowercase, to uppercase, length, char at, index of, last index of. Then you have over here, concat, equals, equals, ignore case, and like this, so many other string methods and also programs based on them. You can also have a lot of, in fact, you have a lot of output based questions. Give the output of the following, such questions from these string class methods. So let us now start discussing all of these methods one by one. Okay, now here you have to, first of all, write down the definition of a string. And what is it? Write down: a string is a sequence of characters, right? So it is a group of characters or sequence of characters enclosed within double quotes.
enclosed within double quotes, जैसे कि हमने यहाँ पे एप्पल को डबल कोट्स में लिखा है. After this, you should know that string is a composite data type. We know that data types are of two types, right? Primitive and composite. Composite data types में हमारे classes आते हैं, arrays आते हैं, interface आते हैं. तो ये जो string है ना, ये string actually एक class है. The string is a class. So classes are definitely composite data type. So the string class is also a composite data type. So write down the string class is a composite data type. ये MCQ based question में आ सकता है कि string is a primitive data type या composite data type, ऐसे करके. तो you have to be very sure that it is a composite type of data type. Composite को non reference भी बोलते हैं, या ये non primitive data type भी बोलते हैं, या reference data type बोलते हैं. Non reference नहीं, reference data type बोलते हैं, या non primitive बोलते हैं, या composite data type बोलते हैं. ठीक है, तो ये हमारे हो गए. अच्छा, now we should know that a class always belongs to a package. ठीक है ना, we know that सबसे ऊपर क्या रहता है, package, उसके अंदर क्लास रहता है, एंड क्लास में बहुत सारे क्लास के मेथड्स या जिसे फंक्शंस भी बोलते हैं वो रहता है. तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले कौन सी क्लास, स्ट्रिंग, और उसके फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़ने वाले हैं. बट वी शुड ऑल्सो नो दैट ये जो स्ट्रिंग क्लास है वो किस पैकेज में बिलोंग करता है, विच पैकेज डज इट बिलोंग, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट बिलोंग्स टू java.lang. याद है ना, java.lang, वो मैथ क्लास भी java.lang में बिलोंग करता था, मैथ क्लास जो सेमेस्टर 1 में तुम लोगों ने पढ़ा है. तो java.lang. ओके, सो ये इसमें बिलोंग करता है. राइट डाउन composite data type which belongs to java.lang package. Okay, this is an important point. Let us dive into the string methods, different string methods. So heading the string methods, एक एक करके मैं सारे string methods को डिस्कस करूंगा, जितने भी तुम्हारे सिलेबस में सबको डिस्कस करूंगा. So let us now start with, length. Length एक function है, let us start with that. Number 1, length. And if it is a method, it will definitely have, round braces open and close after it. So देखो ऐसे round brace open close किया. इसका use क्या है? Write down. It is used to find the number of characters in a given string. That means it is used to tell the length of the string, number of characters of a string. बहुत ही easy है. इसकी return type क्या है? Return type का मतलब ये जो value को return करेगा उसकी data type क्या है. तो length क्या कर रहा है, बहुत easy है, concept लगाओ. ये तो number of characters बता रहा है ना, इसमें 5 characters है, ये 6 characters है, तो वो number जो return करेगा वो 5 होगा या 6 होगा, whatever is the length. तो वो तो एक integer number है ना, जिसको वो return करेगा. So return type इस method की क्या है, int. Isn't it? जैसे for example मेरे पास एक string है, चलो example लिखते हैं, India. INDIA, India, इसको डबल कोट्स में लिखते हैं because it is a string. और India डॉट लेंथ मतलब इस string की लेंथ निकालिए, तो इसका वैल्यू, इसका ये आउटपुट क्या आएगा अगर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, system.out.println India.length. तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा, what is the number of characters, 1 2 3 4 5. इसका आउटपुट आएगा 5, क्योंकि इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं. कितना सिंपल है. एंड यू सी दिस इज एन इंट वैल्यू, राइट. ये जो 5 है ये एक इंटीजर है. therefore return type of this method is int. The next is caret. We will also do a lot of ICSE questions that came in the previous years related to this. So तुम्हें उस समय प्रैक्टिस बहुत हो जाएगा. अभी बस थ्योरी समझो एंड एग्जांपल समझो, फिर क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे. caret I, ये क्या करेगा, it is used to extract the character at index I. मतलब ये ith
इंडेक्स पर जो कैरेक्टर है उसको एक्सट्रैक्ट करके प्रिंट करेगा। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे यही सेम स्ट्रिंग में ले रहा हूं, इंडिया डॉट कैरेट, बी केयरफुल, कैरेट का स्पेलिंग देखो, CHAR तो स्मॉल लेटर्स में है, फिर A कैपिटल है एंड देन अगेन T इज स्मॉल, कैरेट में A कैपिटल है एंड देयर इज नो स्पेस बिटवीन कैर एंड एट। तो इंडिया डॉट कैरेट, यहां मैं 2 लिख रहा हूं, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2 का मतलब इंडेक्स वैल्यू 2 पर कौन सी कैरेक्टर है, वो उसे एक्सट्रैक्ट करना है, उस कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो I का इंडेक्स तो 0 है, N का 1 है, D का 2 है, I का फिर 3 है, इस A का 4 है। सो 2th पोजीशन पर D है। That means which character is being extracted? The character at, so char at 2, the character at index 2, which is D. तो इस D को वो एक्सट्रैक्ट करेगा। D is a single character, so it is of char data type. यानी इस कैरेट का रिटर्न टाइप क्या हो गया, ये किस तरह का वैल्यू है, कैर है ना, तो इसकी रिटर्न टाइप क्या हो गई, कैर हो गई। सो रिटर्न टाइप लिख लो, कैरेट का कैर। ये भी आ सकता है, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ स्ट्रिंग फंक्शन कैरेट, बहुत ही सिंपल है, कॉमन सेंस यूज करके भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग S, E, ये जो पैरामीटर्स के सिंबल्स हैं, जैसे यहाँ I was a parameter and in place of I actually we had to put a number, जिसकी जो इंडेक्स नंबर है एक्चुअली, तो ये I क्या डिनोट कर रहा है, वो पैरामीटर। यहाँ पे भी S और E दो पैरामीटर्स हम करेंगे एंड हाउ इट विल एक्चुअली गिव द रिजल्ट। देखो ये क्या करता है, इट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट characters from S to E minus 1। देखो बहुत ही सिंपल सा है, S to E minus 1 तक जो भी कैरेक्टर्स है उसको एक्सट्रैक्ट करके वो प्रिंट करेगा। एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल इंडिया, यही स्ट्रिंग ले लेते हैं, इंडिया डॉट सब स्ट्रिंग 1,4। समझने का कोशिश करो, 1,4, 1 मतलब हमारा S 1 है एंड E हमारा 4 है, तो कहां से कहां तक, S से E minus 1, यानी 1 से E minus 1 मतलब 4 minus 1 that is 3। सो 1 से 3 तक जितने भी कैरेक्टर्स है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा। सो 1 कहां से है, ये तो 0 है इंडेक्स, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। तो 1 से 3 E minus 1 मतलब 4 minus 1 3, तो NDI 1 से 3, इन तीनों कैरेक्टर्स को ये एक्सट्रैक्ट करके प्रिंट करेगा। NDI, दिस इज अ स्ट्रिंग राइट, बिकॉज इट इज मोर देन वन कैरेक्टर, सो ये स्ट्रिंग, सो इसको जो वैल्यू को वो रिटर्न कर रहा है वो एक स्ट्रिंग है। तो ये सब स्ट्रिंग का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। राइट डाउन, रिटर्न टाइप इज स्ट्रिंग। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं इसी फंक्शन का, one more example। Okay, example, this was example 1, say this is example 2। Apple dot substring 2,4। so 2,4 यानी 0, इसका A का 0 है, P का 1 है इंडेक्स, इस P का 2 है, L का 3 है एंड इस E का 4 है। तो हमें 2 से यानी इस P से 4 तक नहीं, क्या लिखा हुआ है, E minus 1 राइट, दैट मीन्स 4 minus 1 3, सो 2 से 3 यानी 2 और 3, P and L ये दोनों कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे एंड दिस is a string that will be printed as the output, or this will be returned PL। okay, I hope this is very easy to understand substring। next हमारा ये कौन सा नंबर होगा, अब 4th नंबर होगा, write down। next we have again substring with a single parameter, say S। if you see the previous substring जो हमने किया था उसमें दो पैरामीटर्स थे, S से E minus 1 तक वो एक्सट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि हमने यहाँ S और E लिखा था, इधर हमने सिर्फ S लिखा है and the name of the method is same, substring। it will do the same thing as
the previous method, but it will extract from s till the end of the string. जैसे it extracts characters from s till the end of the string. बहुत ही simple है understand करना. Example, say my word is India dot substring. अब मैं यहाँ सिंपली लिख रहा हूं 1. तो इसका आउटपुट फिर क्या होगा? 1 मतलब n की इंडेक्स वैल्यू 1 है, राइट? तो n से एंड ऑफ द स्ट्रिंग मतलब a तक, तो इसका आउटपुट हो जाएगा ndia. इसका भी रिटर्न टाइप एक स्ट्रिंग है, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रिंग. रिटर्न टाइप इज स्ट्रिंग. इजंट इट सो सिंपल? तो जहां से हमें एक्सट्रैक्ट करना है वो यहाँ पैरामीटर के रूप में पास कर देंगे, एंड टिल द एंड ऑफ द स्ट्रिंग वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. Next string function that we have to do is, let me see, yes, index of. Index of. O capital होगा, बाकी सब small है. INDEX small, O big, and F again small. Index of यहाँ पे हम as a character उस character को पास करेंगे जिसकी हमें index चाहिए. Write down. It is used to search for the character C or string C and return its index. In case it is unable, write down, this is very important. In case it is unable to find, it returns -1. अब देखो क्या बोल रहा है ये. इंडेक्स ऑफ क्या करता है? जो कैरेक्टर हम यहाँ पे पास करेंगे एज अ सी, उसकी इंडेक्स हमें बताती है. या फिर हम स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, नॉट नेसेसरीली अ कैरेक्टर. आई कैन ऑल्सो पास अ स्ट्रिंग एज द पैरामीटर. उसकी इंडेक्स, वो स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किस इंडेक्स से, वो हमें बताती है. ठीक है? सो ये लिखा हुआ इट रिटर्न्स इट्स इंडेक्स. नाउ व्हेन वी डू एन एग्जांपल यू विल अंडरस्टैंड मच बेटर. देखो, से माय स्ट्रिंग इज कंप्यूटर, तो मैंने डबल कोट्स में लिख दिया कंप्यूटर. कंप्यूटर डबल कोट्स में लिख दिया. अब लिख रहा हूं डॉट इंडेक्स ऑफ m. यहाँ पे मैं एक कैरेक्टर को पास कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना कि फॉर द कैरेक्टर c, तो मैं यहाँ पे एज अ एक सिंगल कैरेक्टर को भी पास कर सकता हूँ एज ए पैरामीटर. तो मैंने वही किया. सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैर जो होता है, कैरेक्टर होता है, वो एक सिंगल इन्वर्टेड सिंगल कोट्स में उसे हम ये करते हैं, एनक्लोज करते हैं. तो m को मैंने सिंगल कोट्स में लिख दिया. अब बोल रहा है इंडेक्स ऑफ m को रिटर्न करो, उसकी इंडेक्स को बताओ. तो m का इंडेक्स क्या है? ये c का 0 है, o का 1 है, m की 2 है इंडेक्स. सो आउटपुट इसका 2 हो जाएगा. आउटपुट इसका 2 हो जाएगा. एक चीज तो तुम्हें क्लियर हो गया कि इंडेक्स ऑफ का रिटर्न टाइप इंट होगा, क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू को वो रिटर्न कर रहा है. 2 इज एन इंटीजर वैल्यू. सो वन थिंग इज वेरी क्लियर राइट नाउ, इंडेक्स ऑफ का रिटर्न टाइप इंट होता है. वो उस कैरेक्टर या स्ट्रिंग का इंडेक्स को रिटर्न करता है जिसको हमने पैरामीटर में पास किया. यहाँ पे कैरेक्टर को भी पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग को भी पास कर सकते हैं. नाउ लेट अस डू एन एग्जांपल वेयर वी पास अ स्ट्रिंग एज द पैरामीटर. तो मैंने जो हमारा स्ट्रिंग है जिसको हम मैनिपुलेट करेंगे वो कंप्यूटर ही है. अब मैं लिख रहा हूं इंडेक्स ऑफ, इस बार मैं एक स्ट्रिंग को पास कर रहा हूं. स्ट्रिंग को पास करूंगा तो डबल कोट में स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा. आई एम राइटिंग PUT, पुट. पुट, तो पुट का इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है? तो ये देखो 3 से, बिकॉज पुट यहाँ पे PUT पुट, एंड P इज एट इंडेक्स 3, तो इसका आउटपुट भी 3 होगा. तो ये जो P मतलब जो जिस स्ट्रिंग को हमने पैरामीटर पास किया, वो स्ट्रिंग कहां से स्टार्ट हो रहा है, किस इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है. सो पहले तो पुट को ढूंढेगा कि पुट है कि नहीं है, बिकॉज इट इज यूज्ड टू सर्च. पहले तो सर्च करेगा पुट है. अगर मान लो पुट नहीं रहता, अगर कोई दूसरा वर्ड जो ऐसा कुछ रहता, PTER रहता, तो ये मत समझना कि ये फिर ये P है तो ये रिटर्न कर देता. नो. तो फिर ये बोलता कि नो, इट इज अनेबल टू फाइंड. यहाँ पे पुट ही होना चाहिए, PUT पुट.
PUT पुट है स्ट्रिंग में, यस, कहां से है, 3 से है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो देयरफॉर इट रिटर्न 3। अगर उसे मिला ही नहीं वो पैरामीटर, इफ इट इज अनेबल टू फाइंड, तो वो क्या रिटर्न करता है, -1। एक एग्जांपल इसका भी कर लेते हैं। कंप्यूटर डॉट इंडेक्स ऑफ, एक कैरेक्टर पास करते हैं x, सिंगल कैरेक्टर x इस कंप्यूटर में है नहीं, सो व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ x, है ही नहीं x, है नहीं, या कोई भी कैरेक्टर जो इस स्ट्रिंग में है ही नहीं, तो अब इसका आउटपुट -1 आएगा। एक स्ट्रिंग का भी कर लेते हैं एग्जाम्पल, जिसमें हम स्ट्रिंग पैरामीटर पास करेंगे, इंडेक्स ऑफ से TREE ट्री, तो ट्री तो है नहीं, हाँ टी जरूर है, लेकिन टी यहाँ पे, लेकिन डोंट थिंक दैट टी मिल गया, नहीं, ये ट्री पूरा ढूंढेगा। इज देयर एनीवेयर TREE ट्री, नहीं, so it will return -1. Now what about if there are two characters repeated? For example, if I have a word, say apple, there are two p's, and मुझे index of p बोला है, single character p, तो it will return the index of the first p which is 1. दूसरे वाले p का इंडेक्स 2 है, उसको रिटर्न नहीं करेगा, इट विल रिटर्न 1। ठीक है, तो पहला वाला का रिटर्न करता है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन, इंडेक्स ऑफ, आई थिंक बहुत क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये क्या करेगा, it is used to search for the character C or string S from right to left पिछले वाला क्या कर रहा था, लेफ्ट टू राइट ढूंढ रहा था ना, मैंने अभी बताया कि लेफ्ट टू राइट जाएगा तो ना उसे जो पहला p मिला उसका इंडेक्स उसने रिटर्न किया। यहाँ पे भी सर्च हमेशा लेफ्ट टू राइट हो रहा है जब हम इंडेक्स ऑफ का यूज कर रहे हैं, बट हियर द सर्च इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब फ्रॉम द एंड, इसलिए नाम है लास्ट इंडेक्स ऑफ, राइट से स्टार्ट करेगा। हालांकि इंडेक्स पोजीशन लेकिन काउंटिंग 0 से होगी। आई विल टेल यू व्हाट आई मीन बाय दिस, लेट अस राइट एन एग्जांपल। Did we write that its return type is int? ये लिख लो, यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, ये int को रिटर्न कर रहा है, ये सारे int है, तो यहाँ पे इसका लिख लो, इसकी रिटर्न टाइप int है। ठीक है, अच्छा अब इसमें आते हैं, एक एग्जांपल करते हैं, से कंप्यूटर डॉट लास्ट इंडेक्स, आई कैपिटल फिर ओ कैपिटल और कुछ कैपिटल नहीं है एंड नो स्पेस, लास्ट इंडेक्स ऑफ, से आई एम राइटिंग ई, यहाँ तो एक ही ई है इसलिए कोई टेंशन नहीं है, इफ वी हैव 2 लेटर्स रिपीटेड दैट आई विल डू। तो इसका फिर आउटपुट क्या आएगा, देखो इंडेक्स पोजीशन, ऐसा मत सोचना कि मैंने लास्ट इंडेक्स ऑफ लिखा है तो इंडेक्स पोजीशन यहां से 0 1 2 3 ऐसे होगा, नहीं, इंडेक्स वैल्यू जो असाइन होगी वो लेकिन लेफ्ट टू राइट ही होगा, वेदर वी यूज इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो सबसे पहले तो इंडेक्स पोजीशन यहाँ लिख लो 1, इसका 2 3 4 5, ई का 6 एंड आर का 7। तो अभी सर्च स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट आई मीन राइट टू लेफ्ट, सर्च स्टार्ट हुआ राइट टू लेफ्ट क्योंकि लास्ट इंडेक्स ऑफ कर, तो यहां से पहला कैरेक्टर आर, दैट इज नॉट इक्वल टू ई, दूसरा यहां पे मिल गया ई मिल गया, यस क्योंकि वो राइट से स्टार्ट किया, तो 6, इसका आउटपुट 6 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। एक एग्जांपल दूसरा करते हैं, से इस बार हम फिर से एप्पल लेते हैं, and now instead of doing index of, I am doing last index of p, समझो, यहां से इंडेक्स पोजीशन तो 0 1 2 3 4 जैसा लेफ्ट राइट होता है वैसे हो गया। नाउ द सर्च विल स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम ई, क्या ई दिस p के इक्वल है, नहीं, e is not equal to p, फिर l is also not p, then p is equal to p, हाँ सर्च मिल गया। अब क्योंकि ये राइट से स्टार्ट हुआ था इसलिए ये p पहले मिला जिसकी इंडेक्स वैल्यू 2 है, सो इसका आउटपुट 2 होगा।
नाउ यू सी द प्रीवियस वाला, यहाँ पर ये सेम चीज मैंने किया था, लेकिन यहाँ पे सर्च हुआ था राइट टू लेफ्ट नहीं हुआ था, लेफ्ट टू राइट हुआ था। देयरफॉर दिस p जिसकी इंडेक्स 1 है वो पहले सर्च हुआ था, हेंस द आउटपुट वाज 1। सो ये चीज ध्यान दो, इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ में जो डिफरेंस है, इंडेक्स ऑफ में लेफ्ट टू राइट सर्च होती है, लास्ट इंडेक्स ऑफ में राइट टू लेफ्ट सर्च होती है। इसमें भी हम स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं जस्ट द वे वी डिड इट इन इंडेक्स ऑफ। एक स्ट्रिंग वाला एग्जांपल कर लेते हैं एंड देन आई विल प्रोसीड। जैसे एक वर्ड है मेरे पास सेंटेंस, सेंटेंस, दिस इज अ स्ट्रिंग एंड वी आर डूइंग लास्ट इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग है en। तो en यहाँ पे दो बार है, यू सी, एक बार यहाँ en है, एक बार यहाँ en है। तो कौन सी en को वो इंडेक्स बताएगा, क्योंकि हमने लास्ट इंडेक्स ऑफ किया है। तो द सर्च विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1, पहले तो लिख लेते हैं इंडेक्स 2 3 4 5 6 एंड 7। तो en इधर से स्टार्ट हुआ एंड हियर वी हैव एन en at starting at index 4, the e is at 4, इसका आउटपुट 4 होगा। बट इसी सेम स्ट्रिंग सेंटेंस को अगर हम इंस्टेड ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ अगर हम सिर्फ इंडेक्स ऑफ करते तो हमारा फिर आउटपुट 1 आता, क्योंकि ये वाला en का स्टार्टिंग हो रहा है 1 से। तो इंडेक्स ऑफ करने से en का 1 होता, लेकिन लास्ट इंडेक्स ऑफ हमने किया तो 4 हुआ। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू अपर केस, ये बड़ा इजी है, इसमें सबको ये पता है ऑलरेडी आई थिंक। टू अपर केस, बस केयरफुल रहना, यू कैपिटल सी कैपिटल एंड एवरीथिंग स्मॉल, नो स्पेस। अब हम यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं पास करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसमें कोई पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपली क्या करेगा, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू अपर केस। अपर केस में कर देगा, अगर ऑलरेडी अपर केस में तो कोई चेंज नहीं करेगा, अगर लोअर केस में तो अपर केस में कर देगा। फॉर एग्जाम्पल से एप्पल, ये लोअर केस में है, डॉट टू अपर केस, इसको कर देगा एप्पल, ऑल लेटर्स कैपिटल, बस डबल कोट्स। तो इसने रिटर्न किया एक स्ट्रिंग, तो इसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। अगर हमारा कैरेक्टर, हमारा स्ट्रिंग ऑलरेडी अपर केस में होता तो फिर कोई चेंज नहीं होता, उसे ही वो रिटर्न कर देता। ओके, सिंपल। अच्छा, लास्ट इंडेक्स ऑफ का भी जस्ट आई फॉरगॉट टू मेंशन द रिटर्न टाइप, बट यू ऑल नो इट कि ये क्या है, इंट को रिटर्न कर रहा है, जस्ट द वे इंडेक्स ऑफ वाज रिटर्निंग इंट, लास्ट इंडेक्स ऑफ इज आल्सो रिटर्निंग इंट डेटा टाइप। ओके, सो इसकी स्ट्रिंग हो गई। द नेक्स्ट इज टू लोअर केस। ये क्या करेगा, लोअर केस में कर देगा। अगर ऑलरेडी लोअर केस में है तो कोई चेंज नहीं करेगा, उसे ही रिटर्न कर देगा। टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू लोअर केस, एग्जाम्पल सपोज हमारे पास है ए पी पी, अच्छा एल को फिर कैपिटलाइज कर दिया, मतलब कुछ कैरेक्टर्स अपर केस में कुछ लोअर में है, हो सकता है कि सारे अपर में हो या सारे लोअर में हो, तो जो भी है फाइनली जो हमारा स्ट्रिंग रिटर्न होगा उसमें सारे लेटर्स लोअर केस में होंगे, क्योंकि हमने टू लोअर केस कर दिया। सो एप्पल डॉट टू लोअर केस, इसका क्या हो जाएगा, ए पी पी एल, एप्पल जो ऑलरेडी लोअर केस में था वो लोअर केस में ही रह गया, और जो अपर केस में था वो लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। इसमें इसने भी स्ट्रिंग को रिटर्न किया, दिस एप्पल इज अ स्ट्रिंग। सो ऑब्वियसली इसकी भी रिटर्न टाइप अनडाउटेडली स्ट्रिंग ही है। नेक्स्ट, रिप्लेस सी कॉमा डी, वेरी इजी, यू कैन मेक आउट नो बाय द वर्ड इटसेल्फ, मतलब सी को रिप्लेस करो डी से, इट इज यूज्ड टू रिप्लेस द कैरेक्टर, replace the character C with character D, with character D. See, example, suppose I have a word corona, this is my string, इसको मैं कर रहा हूं डॉट रिप्लेस
ओ, सिंगल कोट्स में ओ लिखा बिकॉज दिस इज कैरेक्टर सी विथ कैरेक्टर डी, तो ये सी एक कैर है, दोनों ही पैरामीटर्स कैर है, तो ओ कॉमा ए, what would this return? Means it will return, it will replace the O with A. हमारा यहाँ पे O दो बार है, इधर और इधर, तो ये O को रिटर्न करके A बना देगा, तो कोरोना की जगह कराना कर देगा. Wherever O was there, O got replaced with A. Very, very simple. Be careful, A is not returned with O. A is not replaced with O. O is replaced with A. You have to be careful. इसलिए character C is replaced with character D. Okay, and the 10th one, इसके बाद भी है, लेकिन आज हम इस वीडियो में 10 फंक्शंस को ही करेंगे और बाकी के फंक्शंस फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. नेक्स्ट इज A डॉट इक्वल्स B. तो ये क्या कर रहा है, ये दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, दोनों इक्वल है या अनइक्वल है. ए हमारा एक स्ट्रिंग है और ये बी हमारा एक स्ट्रिंग है, इन दोनों को वो कंपेयर करेगा. तो ये क्या करता है, इट चेक्स वेदर द टू स्ट्रिंग्स ए एंड बी आर सेम और नॉट. अगर सेम हुआ तो वो रिटर्न करता है ट्रू. इफ सेम, it returns true, otherwise it returns false. तो बहुत ही क्लियर हो गया ना, यानी ये ट्रू या फॉल्स को रिटर्न कर रहा है. तुम लोग ही मुझे बता दो क्या इसका रिटर्न टाइप होगा. अगर ये आइदर ट्रू या फॉल्स को रिटर्न कर रहा है तो इस इक्वल्स मेथड का रिटर्न टाइप क्या होगा. जी हाँ, मैंने सुन लिया, तुम लोगों ने बोला बुलियन. बुलियन जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं, क्योंकि बुलियन वो डेटा टाइप है जिसमें बस दो वैल्यूज होते हैं, ट्रू या फॉल्स. Now we have a string, say apple dot equals, फिर से मैंने लिख दिया इसके पैरामीटर में ब्रैकेट में apple. Be careful that this is case sensitive. ये apple को मैंने जिस केस में लिखा है सारे स्मॉल लेटर्स में, इधर भी मुझे वैसे ही लिखना है. अगर मैं किसी का केस चेंज कर दूं या अपर केस में कर दूं, तो मैं एप्पल ही लिखा हूं लेकिन अपर केस में लिखा हूं, तो इट विल नॉट ट्रीट देम इक्वल बिकॉज इक्वल्स मेथड इज केस सेंसिटिव. तो एग्जैक्टली एप्पल और ये दोनों एप्पल में कोई डिफरेंस नहीं है, केस भी सेम है एंड लेटर्स तो ऑब्वियसली सेम है, देन ओनली इट विल रिटर्न ट्रू. जरा सा भी इसमें कुछ चेंज हो जाए, जैसे यहाँ पे एप्पल इक्वल्स, यहाँ पे मैंने एक कैपिटल कर दिया बाकी सारा स्मॉल है, इट विल रिटर्न फॉल्स. और कोई दूसरा स्ट्रिंग अगर है तो ऑब्वियसली फॉल्स तो होगा ही. एप्पल डॉट इक्वल्स अगर मैंने लिख दिया बनाना, तो अनडाउटेडली दिस विल बी फॉल्स. मींस ट्रू होने के लिए इसको एकदम सीक्वेंस सेम होना चाहिए, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सेम होना चाहिए, केस भी सेम होना चाहिए. ये हो गया इक्वल्स. इसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वल्स इग्नोर केस, जिसमें वो केस को इग्नोर करेगा, बट दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. आज हमने 10 इंपॉर्टेंट फंक्शंस कवर किया. गॉड ब्लेस यू एवरीवन, कीप स्टडीइंग, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर.